Hello students, once again I am in front of you with the second video of class 4 chapter 3 the Lake Isle of Innisfree, a beautiful poem written by William Butler Yeats. In the previous video I have already mentioned you about I have already told you about the description of this poem, what the poet has tried to say. The poet was trying to find peace, leaving the urban area. He wants to live in Innisfree, nearby the coast of the Ireland, which is a very beautiful place, which was a very beautiful place for him, because his mother used to live there. So the poet used to plan to go to Innisfree, but somehow he could not. For more information, you can go through the first video that has been taught to you. Now with the second video, in the second video we are going to complete some of the exercises given in this chapter. So let's start the lesson, the Lake Isle of, let's start the chapter, the Lake Isle of Innisfree, written by William Butler Yeats, video number 2. So here are some of the words, as you can see on the screen, on your mobile screen or the computer screen. Here are some of the words and which you have to fill to complete the summary of the poem. I have already done it for you. Let's see. William Butler Yeats wrote this poem in London in 1890. वो 1890 में लंदन में विलियम बटलर ईट्स ने इस कविता को लिखा था when he was feeling intensely homesick, जब उन्हें अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी. घर मतलब नानी गांव. इनिस्फ्री इज एन आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ आयरलैंड. जैसा कि मैंने पहले बताया, इनिस्फ्री एक छोटा सा द्वीप है आयरलैंड के नज़दीक, ऑफ इंटेंस नेचुरल ब्यूटी, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही सुंदर है, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता लोगों के मन को मोह लेती है. इट इज़ लोकेटेड इन काउंटी स्लिगो नामक एक जगह है और उसी के गांव के नज़दीक में इनिस्फ्री एक गांव है. विच इज़ वेयर ईट्स मदर्स फैमिली कैम फ्रॉम. जैसा कि मैंने बताया कि ईट्स की माँ वहीं से बिलोंग करती थी. एंड विच ही आइडेंटिफाइड एज पार्ट ऑफ आयरलैंड एंड द वर्ल्ड क्लोजेस्ट टू हिज हार्ट. जिसे कि उन्होंने यानी कवि ईट्स ने आयरलैंड के नज़दीक पाया और जिसे अपने हृदय के सबसे नज़दीक का जगह भी पाया. क्यों? क्योंकि इससे उनकी माँ की यादें जुड़ी हुई थी. इस लाइन से यह भी स्पष्ट होता है कि ईट्स को अपनी माँ से बहुत ही गहरा लगाव था. वो अपने नानी गांव जाना चाहते हैं. ईट्स एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू बिल्ड अ कैबिन एट इनिस्फ्री. इनिस्फ्री में जाकर के एक छोटी सी झोपड़ी, छोटा सा कैबिन, छोटा सा घर बनाना चाहते हैं. किस चीज़ का? आउट ऑफ वैटल्स एंड क्ले. पेड़ की झाड़ियों से, उनके डंडों से, बांस के करचियों से और साथ ही साथ मिट्टी का बना हुआ घर बनाना चाहते हैं. एंड लिव एज अ हर्मिट. और किसी साधु सन्यासी की तरह इनिस्फ्री में बनाना चाहते हैं. ही नोज, वो जानते हैं. ही नोज व्हाट? दैट ही विल फाइंड पीस ऑन द लेक where it drops from the morning till the beautiful midnight. उन्हें लगता है कि उन्हें शांति मिलेगी. कैसे शांति मिलेगी?
ठीक उस झील के किनारे, जो कि सुबह से लेकर और मध्य रात्रि तक जिसकी अविरल धारा ऊपर से नीचे की ओर गिरती रहती है, उसकी आवाज़ को सुनते हुए वो शांति महसूस करना चाहते हैं। He determines to leave immediately because even when he stands on a city pavement, वो वहाँ से जल्द वहाँ पहुँचना चाहते हैं। कहाँ? इनिस्फ्री पहुँचना चाहते हैं। Because even when he stands on a city, क्योंकि जब कभी भी वो शहर में पक्की सड़कों पर चल रहे होते हैं, he hears the lapping of the lake water in his heart, उनके अंतर्मन में उस झील की पानी की कलकलाहट सुनाई पड़ती है और इससे उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति होती है। So this was a short summary and some of the blanks, fill in the blanks given in this exercise. Now let's move to the another part of the exercise of the question and answer. The first question is, where is the poet keen to go? I have already done it for you. It is very simple answer. The answer is very simple. The poet is keen to go Innisfree. I have already done it for you, my dear. As you can see on the screen, the poet is keen to go to Innisfree. पोएट जो कवि है वो इनिस्फ्री जाना चाहता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट 2. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर बी? व्हाट इज सो अपीलिंग अबाउट द प्लेस? सबसे अच्छी बात क्या है? ऐसी इस जगह में क्या खासियत है? कुछ खासियतें मैंने लिखी हैं, आप चाहें तो उसमें और भी जोड़ सकते हैं। वो खासियत आप ये भी लिख सकते हैं कि चूँकि वो उनके माँ के रिलेटिव से वो बिलोंग करता है इनिस्फ्री, वो भी अपीलिंग है, जो कि वो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है, ड्रॉ करता है। लेट्स सी व्हाट आई हैव रिटन फॉर यू. इनिस्फ्री इज़ फार फ्रॉम द हसलिंग एंड बिजी लाइफ ऑफ सिटी. इनिस्फ्री जो है वह शहर के भागदौड़ की जिंदगी और व्यस्त जीवन से काफ़ी अलग है, बहुत दूर है। In Innisfree there is quietness and peace which the speaker is seeking for. Innisfree में शांति है, स्थिरता है, एक अजीब सी स्थिरता है और शांति है, जिसे जो कि कवि तलाशना चाहता है। यानी कवि को जिस चीज़ की तलाश है वो चीज़ इनिस्फ्री में है, और कवि को किस चीज़ की तलाश है? क्वाइटनेस की, यानी वो अकेले में रहना चाहता है और साथ ही साथ उसे शांति की आवश्यकता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सी. हाउ आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? निम्नलिखित को इस पोएम में कैसे डिस्क्राइब किया गया है? मॉर्निंग को, मिडनाइट को, नून को और इवनिंग को. लेट्स सी, आई हैव ऑलरेडी डन इट फॉर यू. मॉर्निंग को कैसे दिखाया गया है? सॉरी, आई हैव रिटन द वीडियो. एक्चुअली हियर इट वुड बी पोएम, POEM. यहाँ वीडियो नहीं होगा. सो in this poem, morning has been described as dropping veils of night. इस पोएम में मॉर्निंग को जो है स्याह रातों का गिरते हुए दिखाना, यानी जब रात का अंत, और रात का अंत जब होगा तो क्या होगा? सुबह होगा। यानी सुबह को जो है रात के अंत के रूप में दिखाया गया है। मिडनाइट को कैसे डिस्क्राइब किया है कवि ने? द मिडनाइट हैज़ बीन मेंशन्ड एज ग्लेम्ड बाय द मून। और वहाँ की मध्य रात्रि कैसी है इनिस्फ्री की? वह चंद्रमा के प्रकाश से दमक रही है, चमक रहा है। यानी जो मिडनाइट है वो चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशवान है। नून, दोपहर का कैसा वर्णन किया गया है? नून हैज़ बीन सिंबलाइज्ड एज द सन ग्लोइंग पर्पल। यानी सूर्य का
बहुत तेज के रूप में चमकते, पर्पल के जैसा चमकते हुए दिखाई पड़ना ही नून को डिपिक्ट किया गया है। इवनिंग, इवनिंग को कैसे सिंबलाइज किया है कवि ने? अकॉर्डिंग टू द पोएट, द फ्लटरिंग एंड चर्पिंग ऑफ द लिनेट बर्ड डिपिक्ट्स इवनिंग। कवि के अनुसार एक छोटी सी चिड़िया का अपने पंखों को फड़फड़ाना, किसी भी पेड़ की शाखा पर बैठ करके अपने पंखों को फड़फड़ाना और साथ ही साथ उसकी चहचहाना, उसकी चहचहाहट को कवि ने इवनिंग के तौर पर दिखाया है। नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी, what is question number D? Question number D is, what is pavement gray symbolic of? pavement gray जो है ये किस बात को सिंबलाइज करता है, किस बात को दर्शाता है? The pavement gray, this symbolizes the road of the rural area. द पेवमेंट ग्रे जो है यह किसी ग्रामीण क्षेत्र के सड़क को दिखाता है, यानी धूल से धूसरित सड़क को जो है द पेवमेंट ग्रे के रूप में कवि ने डिपिक्ट किया है, सिंबलाइज किया है। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. You have to give the rhyming word for hive, glade, slow, shore, deep and bee. I have already done it for you. You may write more rhyming words in the comment box. Don't forget to write the rhyming words in the comment box also. And don't forget to subscribe the channel also. Let's see the answer. The rhyming word for hive, I have written 5. You may also write dive, D-I-V-E, in the place of 5 also. Glade, I have written blade, B-L-A-D-E, blade. Slow, I have written the word flow. Shore, I have written the word shore, S-O-R-E, shore. This seems to be rhyming word. Rhyming word means the words which are pronounced alike, that is known as the rhyming word. Deep, peep, bee, she. So these are some of the rhyming words. So students, this is all for today. I would once again ask you, don't forget to watch the first part of this video, and after that one only you can understand the second part also. Okay, thanks. This is all for today. In the next video, I will come up with the remaining exercises given in this book. Bye. Take care of yourself.